Aditya, there is a question which is a specific question which has come is, how did you do time management in your GS papers, especially ethics? Sir, I had a fixed time while writing the exam. I used to give half of the time for case studies and half of the time for GS part. So initially, I did case studies in the first half. And how I try to manage my time even better is that we get around 5 minutes of time for reading the questions. So in that 5 minutes of time, I would dedicate entirely to the first 2 or 3 case studies. I would read both of them, underline whatever is important. I had my own style, like I would underline the facts and encircle the stakeholders. So that I used to do in the first 5 minutes for the 2 or 3 case studies, and that used to save some amount of time for reading the case study as well. And then it's all about trying to give your best in the 15 minutes meant for each case study, and then moving ahead to the next. So that speed would develop with practice and with the number of dimensions you are trying to open up. So that would come with practice, but time management used to happen like that. Okay, Aditya. The second question, which is a follow-up to this, is when we are writing test under time, one, the quality degenerates and the content become too generic. Yes. जब हम टाइम प्रेशर में लिखते हैं तो थोड़ा क्वालिटी नीचे आता है और जनरल पॉइंट लिखने लगते हैं, जो कि आपने देखा होगा एमएमपी में हम बहुत खास उसका फीडबैक देते हैं. हाउ Yes. डिड यू मैनेज दैट इशू एंड वर यू एबल टू गेट ओवर दैट इशू? Sir, yes, sir. I think I was able to get over that issue because of 2 major reasons. Firstly, the time management thing itself would come with practice. And secondly, your content has to be enriched enough and you have to revise it multiple times so that it gets stuck in your brain. What I used to do was that I had my own content. And then from MP best answers, I used to pick more content. So I had more diverse examples and more diverse points. There were even people from optional, like I used to read the geography answers of Siddharth. So that gave me extra pointers or examples or even keywords and graphs. So everything I used to collate at one place and then revise it and re-revise it multiple number of times. And then I think that got stuck in my brain, and with practice, that got transferred to the copy as well. So I think I was able to deal with that kind of stuff. With time also, I was able to write well because of this. Everyone, what I can understand from what Aditya is saying कि स्टार्टिंग में ये नहीं होता है भाई. स्टार्टिंग में चीजें आपको याद नहीं होती, दिमाग में फंसती नहीं है. बट एक तो तैयारी आदित्य लेकर आए थे. आदित्य हैड हिज प्रिपरेशन वेल इन टाइम, और उसके बाद ही चोज द बेस्ट थिंग्स विच वुड कॉम्प्लीमेंट हिज प्रिपरेशन फ्रॉम एमएमपी बेस्ट आंसर्स, और उनको बार बार रिवाइज किया. प्लीज अंडरस्टैंड, रिविजन वाज द की जब तक वो दिमाग में नहीं बैठते हैं. तो आप जेनेरिक क्यों लिखते हैं? बिकॉज आपने बहुत चीजें मेमोराइज नहीं की है. Initially that memorization may not happen, but with time that will happen. So you can see Aditya also kept on progressively improving on that. So yes, we agree कि starting में आपके generic होते हैं, we give you that feedback, but we are patient enough to see that will go. ठीक है? So I hope that answers your question. Aditya, आपने जैसे सिद्धार्थ के आंसर से लिया, I remember talking to you. आयुषी बहुत अच्छा लिखती थी, सोशियोलॉजी का उनका आंसर होते थे. You borrowed a lot from them. So we have a question coming in here who's saying that how can I ensure that my case studies and my illustrations stand out? तो आपने जब अपने आंसर दिए, कंटेंट तो आप याद किए हुए थे, what techniques did you employ कि वो चीजें अलग से दिखे? So there were 2, 3 things I had kept in my mind specific to the case studies itself. So I had prepared a graph, a bar graph kind of thing. People can see it in my Abhyas copies also, I think. I used to prepare a bar graph, make 3 bars, the tallest, then a bit smaller, and then the smallest. I used to write the tallest one as priority one and write what is my priority one. So that graph, I think I included in 3 out of the 6 questions. Apart from that, we always make stakeholder hub and spoke, but we never use them in our answers. So I ensured that if I'm writing my ethical dilemmas, then every point comes from a different stakeholder, from the perspective of that and the interest of that particular stakeholder. So that's how I used to frame my answers, which look more logically connected and also more diverse in their perspective. Solutions also I used to give in that perspective, so that it caters to every stakeholder. Then I learned a lot of quotes. So I used to start at least 2 or 3 of my case studies with a quote and end them with either a directive principle or
a fundamental duty, fundamental right, things like that from the constitution. So I think these things helped me to get that kind of edge in case studies and make my answers stand out in case studies. Okay, perfect. So everyone, I hope you're writing this down also, क्योंकि ये ऐसा कोई टॉपर टॉक नहीं है जिसमें जेनेरिक बातें हो रही हैं कि ये करना है वो करना है. वी आर टॉकिंग एट अ वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम, एमएमपी प्रोग्राम, जो आपको एकदम उस लेवल पर पुश करना चाहता है कि आप अमंग्स योर टॉप रैंक्स आए. सो आदित्य जो बात कर रहे हैं वो ऐसी फिलोसॉफिकल या जेनेरिक बात नहीं कर रहे. एग्जैक्टली उन्होंने ये सारी चीजें अडॉप्ट की हैं. दैट इज व्हाई वी आस्क्ड यू फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. So, जो आपके काम की है, whatever you feel is important, you are missing on, these are all practical, ready to use tips. So, इनको जरूर use करें. जी. One more thing, sir, that even in case studies, I wrote examples that I did not mention earlier. So even in Okay. case studies, if you are mentioning some ethical dilemma or some name of some theory, then definitely you can quote one example from that theory, which you would have already memorized for part A. So that was also a value addition. Perfect. तो वैल्यू एडिशन, यू हैड योर ओन कंटेंट. आपने Yes. एमएमपी से भी बहुत कंटेंट लिया. बट Yes. आई बिलीव कि थोड़ा सा जिस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री है, ये इतनी कंटेंट हैवी है, इट इज सो कंटेंट हैवी दैट दे कीप ऑन गिविंग अस दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस कि यार कुछ कम है. Yes. So how do we draw a line on that? And to that I have a question by Ishita. To what extent current affairs from magazines etc. do you think are important to cover mains? जीएस में कितना करंट अफेयर्स अभी पढ़ सकते हैं, या कोई मैगजीन क्या आपने पढ़ी थी, एंड इज इट वाइज टू गो देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम? हाउ डू यू मैनेज? Sir, mostly तो I had seen कि the papers are static. Even in papers like GS1 and 2, a lot of part is static because though the question would be dynamic from current affairs, but the content you will put in would be mostly static because your arguments would already be prepared, your examples would already be prepared. You could just shape it to match the requirement of the question and in the context of the recent happening. So I think your static part should be very strong. Your arguments and the corresponding examples should be learned by heart. And after that, you can look at the magazines to find out what exactly is going in the news. That itself can become a starting point or the introduction of your answer. But I believe the static part has to be much more strong. So for current affairs, I did not do that much. I prepared my static well, and I referred to Mains 365 of Vision. And that was the only source I used for current affairs. तो एवरीवन, राह पकड़कर एक चला चल पा जाएगा मधुशाला. Do not unnecessarily be caught with so many sources of current affairs. As Aditya has rightly pointed out, कि पिज्जा का बेस, जो बेस ऑफ योर प्रिपरेशन है वो स्टैटिक है. उसके बाद यू कैन पिक अप एनी वन सोर्स जो आपको पसंद आता है, वट एवर गोज विद योर केमिस्ट्री, योर फेथ, उससे आप ऐड कर लीजिए. वो भी जरूरत अनुसार करना है. यू डोंट हैव टू अननेसेसरीली लोड थिंग्स विद दैट, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और मेरे ख्याल से आदित्य, एमएमपी के आंसर्स में इतने अच्छे से इंटीग्रेट होता है, बहुत सी चीजें तो आपको वहीं से डायरेक्ट मिल जाती हैं, डाइजेस्टेड वंस. जी सर, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर सब्जेक्ट्स which purely look current affairs based, like इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इवन काफी हद तक ज्योग्राफी हो गया, उसमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है. तो इसमें आई इवन रेफर टू द प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड आंसर्स ऑफ मेंस टेस्ट सीरीज. जैसे कि आई गेव अटेम्प्ट इन 2023, तो मैंने 2022 वाला विजन का जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसके सारे सॉल्यूशंस अमेजोन से मंगा लिए, और वहां से भी, जैसे माउंटेन्स वाला टॉपिक है तो वहां से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उठा लिए. ऐसे ऐसे करके मैंने उसमें भी हाईलाइट करके अपने एक नोट्स की तरह बना लिए थे इस तरह के डायनेमिक सब्जेक्ट्स के. दैट आल्सो हेल्प्ड आई थिंक. बिल्कुल. तो आई वुड वांट यू टू डू दैट. और फिर मैंने जैसा कहा, आदित्य, मुझे बहुत से एमएमपी टॉपर्स ने कहा कि सर हमने कई जगह पे टॉप किया, और जहां भी हम एमएमपी बोलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम काट देता है आपका. तो भाई कोई नाम नहीं काटना. आदित्य अगर विजन देख रहे थे तो विजन से, कोई वाजीराम से कर रहा हो, कोई जिससे कर रहे हो, आई एम नॉट इनटू दिस. माय इंटेंशन इज द स्टूडेंट शुड रीच. इनफैक्ट द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स, अभी मैंने जिनका कुछ का नाम भी लिया, दे अप्रोच्ड मी कि सर ये एमएमपी मॉडल क्या है. Their management approached me, their top leadership approached me कि सर we also want to see what this is. I said वो तो सब ठीक है, but ये दिल कहाँ से लाओगे? Where will you give it free of all? Do not make it a revenue based model.
If you are thinking, treat it as your contribution to the student community. So I have no issues with any institute being named, but the idea is उनका best निकालिए. आप लोग समझदार हैं. So whichever institute you've been following, जैसे आदित्य ने कहा, उनके पिछले आंसर्स भी, इफ यू वांट हम पिछले एमएमपी के आंसर्स भी आपको दे देंगे, बट देन द टाइम इज लिमिटेड. गेट दैट, टाइम इज लिमिटेड. वेयर एवर नीडेड वहीं पे जाइए. Otherwise, the difference between people who get selected and not selected is not their ability, but it is how did they manage smartly that time. So that is what we would look at, and that would be an amazing thing if we can have that. Yes. Okay. कुछ लोगों का अनम्यूट हो गया था. आदित्य, एक और क्वेश्चन आया है. दिस इज अ क्वेश्चन जो एथिक्स पे भी अप्लाई होता है एंड ऐसे पर भी अप्लाई होता है. दो तरह के वो हैं. सो नंबर वन इज, how did you go with these quotation based questions? ठीक है. एक quotation based question आप कैसे handle करते थे? Though you said you yourself were memorizing many quotations, so I'm sure you were getting the essence also of that. So that is one. And second is, somebody is saying that can we go against the essence of the quote and present a counter argument? कि कोटेशन को आप कैसे अप्रोच करते थे. मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली बच्चे ऐसे में क्या कर रहे हैं, कोटेशन को मर्सीलेसली दे आर कटिंग इनटू 2-3 कीवर्ड्स एंड राइटिंग मैकेनिकली ऑन दैट. एंड वो होता भी है, डर में होता है, कई बार कोचिंग में भी ऐसा कर दिया जाता है. बट द क्वेश्चन इज, डू वी राइट द होल एसेंस ऑफ द कोट? हाउ डिड यू मैनेज इट? एंड कैन वी गो अगेंस्ट द कोटेशन एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट? Sir, I would say कि essence is the most important thing, because keywords are not important in a quote. The essence of the quote is important. And from my personal experience, I would always dedicate 10% of the entire space available for either ethics में या essay में for the counter argument, because that is another dimension which I think needs to be touched to counter the quote and give at least 10% of the space for that. But doing it too much would mean that you are actually not writing your answer in according to the essence of the quote. So that would be my take on it. What I did was that I used to write my answers and even my essay in a question answer format. So let us take the quote that ship does not sink because of water around it, but because of water that gets into it. So I would take the question that what prevents the ship from sinking when the water is outside? So that would be one of my dimensions which I would open up. कि the internal values and the self confidence, उनकी बात थोड़ी कर सकते हैं. Then how does the water get in? So when your self esteem breaks, then that outside opinion starts mattering more to you. तो इस तरह के questions और dimensions के through मैं एक essay को लेकर के चलूंगा. और लास्ट में डेफिनेटली मैं उसका एक काउंटर देना चाहूंगा विथ एग्जांपल एंड विथ आर्गुमेंट्स. मैं देना चाहूंगा कि हाँ, कब ये कोड एक्चुअली में इट डजंट होल्ड वाटर, व्हाट कुड बी द डायमेंशन देयर. So this is how I would organize my answer. But the major difference would be, essay में it would be all paragraph based, but ethics में I stuck to the point कि all my answers, including the quotation based questions, should be in point format. And there you have the freedom of exploring pointers from all perspectives again. एक पॉइंट आप कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, एक पब्लिक सर्वेंट के, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के, हर एक के पर्सपेक्टिव से आप एक पॉइंट दे सकते हो. तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग डायमेंशंस आपको अपने आप खुलते हुए दिखेंगे. So that would be my take on it. Perfect. Thank you, Aditya. So I hope you got that कि the essence of the quote matters. And सबसे बड़ी बात यह है कि quote को समझना जरूरी है. Please understand what is it. And आदित्य ने भी कहा, मैं भी मानता हूँ कि if there is a counter argument, वो जरूर आना चाहिए. But that will not be the core of your answer. That will be the periphery. आदित्य ने बोला, आदित्य points में भी लिखते हैं. So all the people who are worried points या paragraph, intention ये है, the points which you are using, they should be seen from all perspectives, which is I think Aditya has highlighted. In fact, Aditya, मुझे याद है, I remember talking to you on your essay जो submit हुआ था, उसमें ऐसे यार लिखता इतना अच्छे हो, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, बट हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नैरोली इंटरप्रेट हुआ है. So I think that is what we are talking about, कि आप अपने कोटेशन को जितना ब्रॉड इंटरप्रेट करेंगे उतना ज्यादा होगा. एंड it always stood out, आदित्य, जब भी आपका हमने आंसर भी पढ़ा, ऐसे भी पढ़ा, तो आई रिमेम्बर लॉट ऑफ इट वाज देयर. बस वो डायरेक्शन सही जाना है.
So Yes. आदित्य, इसी में कुछ किसी ने पूछा मुझसे क्वेश्चन ऑन द पॉइंट थिंग. सर, इज इट एब्सोल्युटली एसेंशियल टू राइट एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स? अब मुझे समझ में नहीं आया 7 to 8 फिगर कैसे आएगी, आप सोचिएगा. एंड ऑल्सो विच इज बेटर, राइटिंग 7 पॉइंट्स ऑन द वन थीम और मेकिंग सब थीम्स ऑन योर ओन एंड राइटिंग एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स? ये बड़ा मैकेनिकल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई इट केम, बट बिगनर्स में ये जरूर होता है कि सर 7-8 गोलियां मार दो, एग्जामिनर मर जाएगा, या एक गोली मार के उसको तड़पाना है. तो क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ फॉर द हाँ sir. ऑफ आवर लिसनर्स. इज इट एब्सोल्युटली एसेंशियल टू राइट एटलीस्ट 7 or 8 points, or is it better to write one theme or making sub themes and then elaborating on that? Sir, what I understood from my preparation, and when I talked to the people who had topped the GS marks during my previous attempt when I was in IPS, I think Vaishali what I wala understood also that that. every paper would carry a different kind of approach. So Okay. I'd like to provide some details on that. So for paper one, I talked to the person who had scored whose difference from my marks was more than 12. So what they were doing was they were adding an additional dimension and focusing more on diagrams, etc. So that was one thing I picked up. Like if they are asking what are the resource potential of Deccan traps, then out of 2 pages, 1.5 pages should go on that. But then you should also mention 2 or 3 points in the end, without compromising on the space, about what are the challenges in extracting those resources. So that would provide an additional dimension and also make your answer look more diverse. So that thing I learned for paper one. Paper two, it was more about facts like the commissions, the judgments, and even I introduced a new element where I would make a box in the top right corner and write one case study, specifically in social justice and governance. So those were the things I picked up in paper two. The number of pointers here are not mattering. It is only that if your question has 2 or 3 parts, in every part you write at least 5 points, because the question is of 10 marks or 15 marks. That is how we used to organize. But one thing which Goldie told me for paper three was that the more number of points you write, the more marks you would get. So already I had decent number of marks, but there I used to write at least some background in 2 points just after introduction. Then I would address the main question, and then I would also write 2 points of challenges and 2 points of way forward to maximize the number of pointers specifically for GS3. And that I think worked. I actually increased only 4 marks, but it was already 91, so I got to 95. Ethics made it's entirely different game. There, the number of codes, thinkers, especially if you are providing something unique. For example, most of the thinkers people practice or use are the same. I also studied Nietzsche, Aurelius, and I think one more, I'm forgetting the name. Those were the additional thinkers and 1 or 2 theories of each thinker, which I learned, and was sure that I would use them in the actual paper as well, because that would add a new flavor to my answer. And then apart from that, all the things other I told that every answer should have multiple perspectives. Every point should have an example. So those kind of things would always work in ethics. So I tried to adopt a paper-specific approach rather than an approach which would be applicable for each paper. Thank you, Aditya, for such a practical tip. Aditya, I have been getting this question from many people. ऐसा क्या जादू था कि आदित्य was able to increase his score from the previous attempt? So I think आपको इस आंसर में आपको दिखाई दिया होगा, आदित्य was not very generic with this. बहुत ही क्लियरली उन्होंने पाया कि पेपर वन में अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री है तो उनके टूल्स यूज करिए. ज्योग्राफी का एक इलस्ट्रेशन जाना चाहिए, हिस्ट्री का कुछ टाइमलाइन हो सकता है, कुछ नाम हो सकते हैं. पॉलिटी में ही वाज स्मार्ट इनफ टू सी यहाँ पर अब बॉक्स आइटम आने शुरू हो जाएंगे. थर्ड में ही वाज एबल टू लाइक कट द कोड बाय पॉइंट्स, इतना मारो कि गिरकर नंबर देगा ही देगा. एथिक्स में अगेन ही हैज गिवन यू द स्ट्रेटजीज. सो हम सुनते सबकी हैं, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस, but we don't employ those techniques. You can see how diligently Aditya talked to people, and Aditya was very observant even with MMP. जो अपने बैचमेट्स हैं, MMP एक अपने आप में एक फैमिली होती है. We trust each other. वो कोलैबोरेशन ज्यादा है, कंपटीशन कम है. So I would want you to really listen to the essence of what Aditya has said.
और शायद यही उसका सीक्रेट है कि आप अपना स्कोर हर जगह पे कैसे बढ़ा पाए। आदित्य, कुछ और है इसका आंसर कि आप हर पेपर में कैसे बढ़ा पाए, एंड हाउ वर यू एबल टू एक्चुअली गेट दैट बेसिक क्वांटम टेक्निक्स, लीप? जी सर, बेसिक टेक्निक्स तो यही थी। अब इसके बाद वो था कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। और एथिक्स में खासकर जैसे मैंने पीयूष सर वाला नाम और भी जगह लिया है, तो उनका जो कंटेंट था और उनका जो आंसर राइटिंग का जो तरीका उन्होंने सिखाया था, वो भी मैं कहूंगा कि काफी फायदा किया, क्योंकि सबसे बड़ा जंप मेरा एथिक्स में ही आया है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल में आया है। तो इलेक्ट्रिकल में तो खैर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उसमें मेरे को अपना कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारने की दिक्कत थी। एथिक्स में इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, कि प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा हो और आपका जो कंटेंट है, सोचने का तरीका है, वो सारा भी एक फाइन ट्यून्ड तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर को लेकर के चलो, डाइवर्स तरीके से पॉइंटर्स लिखो, कि थोड़ा पब्लिक सर्वेंट का भी टच हो, थोड़ा सा ये भी टच हो, उस तरह से आपके नोट्स भी होने चाहिए। तो वो सारी चीजें एथिक्स में बहुत मैटर की थी। परफेक्ट आदित्य। आदित्य, एक एथिक्स का एक और रेलेवेंट क्वेश्चन है व्हिच आई फील कि यू नो देयर समवन हु इज आस्किंग, सर आई ऑफन यूज इन द एथिक्स पेपर वर्ड्स लाइक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, एंड दे टेंड टू बी रिपीटेड टू ऑफन। तो ये रिपीटिशन थोड़ा कम करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, या इज देयर एनीथिंग यू नो दैट वी कैन एम्प्लॉय, इफ यू कैन एड्रेस दिस आल्सो? और अगर आपको लगता है नहीं रिपीट करो तो कोई टेंशन नहीं। नहीं सर, रिपीटिशन से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि फिर आपका आंसर मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। आपको उस वर्ड को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके तो दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी लिख करके आप एग्जांपल नहीं दे सकते। आपको दिखाना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन से कैसे लिंक्ड है वो अकाउंटेबिलिटी कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हैं। या ओके, फिर तो आप अगर उस जी, या फिर अगर आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं तो और बेहतर, आपके आंसर उससे मिक्स होकर के दिख जाएगा। बट हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज अ कीवर्ड, तो वो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि सिलेबस परफेक्टली में लिखा ओके, हुआ है। अकाउंटेबिलिटी आप जरूर रखिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप जिस तरह से इन इन वेज यू विल कनेक्ट इट टू द टॉपिक ना, दैट विल ब्रिंग द डाइवर्सिटी। तो यस नमक तो देखो सभी खानों में डलता है, लेकिन सब खानों का जायका अलग होता है कि नहीं होता, बिकॉज द डिश दैट यू आर टारगेटिंग इज अ डिफरेंट वन। सो अपनी यस डिश को स्वादिष्ट करिए, नमक तो वही रहेगा, वो बार बार आ भी सकते हैं। इसी में आदित्य, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल, आपने कहा कि यू वर एबल टू इंक्रीज योर स्कोर इन ऑप्शनल ऑल्सो। थोड़ा सा हाउ डिड यू मैनेज योर ऑप्शनल? टाइम कम होता है, एमएमपी की अपनी डिमांड होती है। अंशुल पूछ रहे हैं हाउ डिड यू डिस्ट्रीब्यूट अ डे फॉर टाइम मैनेजमेंट? मेरे ख्याल से बड़ा एप्ट क्वेश्चन है कि जी सर। from the person who got rank 1 and you were doing it by staying at home, आप ये दिल्ली के चक्कर में नहीं फंसे कि दिल्ली आना है, यस and we are a tragic event happened at Delhi. यस Unfortunately students are you know like rushing for this MMP में। हमने पिछली बार भी बहुत से लोगों को कहा कि do not rush for Delhi, ऐसा कुछ नहीं है, the best can be reached to। so आदित्य, एक ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, दिन का टाइम मैनेजमेंट, और ऑप्शनल को कैसे प्लेस किया, इफ यू कैन टेल अस दैट? यस सर। So my day used to begin early because I think the answer writing itself began at 7 a.m. I'm यस, forgetting the time, स्टिल but 7 ही बजे, वी आर yes कीपिंग sir, द सेम। yes sir। तो इनिशियली 2 घंटे मेरे उसमें रिजर्व रहते थे। 2 घंटे मतलब वट एवर द पेपर टेक्स, 70 मिनट है तो ठीक है, 110 मिनट है तो भी ठीक है। तो इनिशियल तो मैं बस उठूंगा अपना, फ्रेश फ्रेश हुए और बैठ गए आंसर लिखने। उसके बाद जब वो खत्म होता तो मैं नाश्ता करता था, और उसके बाद मैं लंच टाइम तक जीएस का अपना रिवीजन करता था। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार कर चुका था, तो इसलिए मेरे पास नोट्स और ये सब चीजें तो तैयार थी। बस वैल्यू एडिशन और उसका रिवीजन, यही मेरा काम था अगले 3-4 घंटे जो भी है टिल लंच। आफ्टर लंच आई यूज टू सिट फॉर इलेक्ट्रिकल। उसमें एक और मेरा दोस्त था, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, कि उसमें भी थ्योरी ये सब तो ठीक था, मेन प्रैक्टिस का ही खेल था। तो फिर हम लोग लंच से लेकर के डिनर तक पूरा टाइम मैं इलेक्ट्रिकल को देता था। 15 क्वेश्चन मेरा फिक्स था, कि जैसे आप भी 15 क्वेश्चन करा रहे हैं जीएस के, और मैं अलग से 15 क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रिकल के करूंगा रोज। उसके बाद मैं अपनी गलतियां देखूंगा कि आज वाले इलेक्ट्रिकल के मैंने क्या गलतियां की, और इफ पॉसिबल तो उसी टाइम में मैं जीएस वाला भी अपना देख लूंगा, कि जो कॉपीज चेक होके आई हैं, या जो भी मेरे को लगता है मैं देख सकता हूँ, उसके मैं गलतियां अपनी देखूंगा, क्या इंप्रूव कर सकते थे, क्या दूसरे लोगों ने अच्छा काम किया जो मैं अपने वाले में डाल सकता था, और उसके मैं अपने नोट्स वोट्स तैयार कर लूंगा। फिर डिनर के बाद लगभग 1 घंटा मेरा रहता था, कि मैं अब 1 घंटा एथिक्स को दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि सबसे ज्यादा बढ़िया कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उसी सब्जेक्ट का है। तो मैं अलग से 1 घंटा रात को एथिक्स को देता था। उसके बाद फिर मैं सो जाता था, कि 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। तो दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू प्लान माय डे। So sleep is important. Please make sure 7 hours sleep is there. आदित्य, बहुत से लोग नॉकटर्नल हैं, एकदम वेम्पायर हैं, वो मुझसे अक्सर नाराज रहते हैं, सर आपकी वजह से हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है।
तो बहुत से लोग इसको चेंज कर पाए, बट सम पीपल आर फाइंडिंग इट अ बिग चैलेंज, बट आई थिंक योर बायोलॉजिकल क्लॉक हैज टू वर्क. सो Yes. आदित्य, ये जो आपने जो टाइम मैनेजमेंट बताया, इसमें हाउ मच टाइम जनरली फॉर एमएमपी के बेस्ट आंसर्स के साथ और अपने इवैल्यूएशन के साथ वुड बी एन आइडियल वन, क्योंकि समटाइम्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट एंड ओवर थिंकिंग. तो जब आप देखते थे, तो हाउ वाज इट? पॉइंटेड अप्रोच होती थी कि भाई दीज आर द थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर, या जेनेरिक देख रहे थे? एंड हाउ मच टाइम वुड यू आइडियली गिव फॉर दैट? सर आई वुड से कि इनिशियली मेरे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था और थोड़ा ज्यादा टाइम मैं देता भी था, कि मैं 3-4 लोगों की कॉपी देख रहा हूँ, बेस्ट आंसर भी देख रहा हूँ, बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है. तो फिर मैं जैसे बेस्ट आंसर तो आते ही थे, वो तो देखता ही था, उसके अलावा कुछ अगर कोई स्पेसिफिक पोर्शन है तो काजी सर या कोई कुछ खुद ही बता देते थे कि तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है तुम इस इंसान की कॉपी से देख लो. तो फिर मैं वो स्पेसिफिक चीज और देख लेता था और उसी के अपने नोट्स बना लेता था. विथ टाइम द रिक्वायरमेंट टू सी द नंबर ऑफ कॉपीज रिड्यूस्ड. तो फिर लास्ट लास्ट तक तो फिर सिर्फ बेस्ट आंसर ही देख लिया तो काफी था, क्योंकि तब तक मेरा कंटेंट और मेरी समझ इतनी पहुंच चुकी थी कि फिर बहुत ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी. तो विथ टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस वुड डिक्रीज. So everyone, I guess the more you do it in the beginning, the less you would have to look later on, because by that time you would have identified what is missing in your strategy, what can be borrowed. Later on, it becomes more of a challenge how to incorporate those changes. सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं है ना, उसको अप्लाई भी तो करना है. एंड देन योर इवेलुएटर, मैं हुआ या काजी सर हुए या हिमांशु सर हुए, दे वुड ऑल्सो सी कि हाँ ये एज पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट इज important, and thank you for telling that. आदित्य, वो ऑप्शनल को मैनेज कैसे करना है, वो वाला क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हुआ है. थोड़ा सा और उसको डिटेल में अगर दे पाए तो. सर मेरा तो वही था, मतलब कि जैसे मेरा ऑप्शन तो बहुत स्पेसिफिक है, इट्स प्योरली कैलकुलेटिव. तो नहीं, मेरा था कि लंच. बट टाइम मैनेजमेंट के सेंस में कह रहा हूँ, मैकेनिकली, यू नो, लाइक हाउ वुड यू सी दैट, उसके टेस्टिंग आप कैसे करते थे? आई नो पीपल हैव सोशियोलॉजी एंड पीपल हैव एंथ्रोपोलॉजी आल्सो, बट टाइम हाँ मैनेजमेंट कैसे वो किया जाए? जी सर, तो जैसा मैंने कहा कि मेरा 60-40 रहता था, तो मैं लंच से लेकर के डिनर तक का रोज का मेरा टाइम फिक्स था फॉर ऑप्शनल. तो ये लगभग आपके 6 घंटे बैठ जाएंगे. 6 hours. नहीं, 5 5 घंटे टाइप बैठ जाएंगे लगभग, 3 से 8 या 9 तक मान लीजिए. और फिर उस बाकी का जो पूरा टाइम जाएगा मेरा, वो आपका जाएगा जीएस को, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग एंड इंक्लूडिंग वॉट एवर एनालिसिस आई हैव टू डू. तो ये जनरल मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता था. इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं फिर ही बता पाऊंगा. टाइम का तो मेरा यही डिस्ट्रीब्यूशन रहता था. So everyone, chat boxes are open. If you have any specific question, please feel free to ask that. I will also use that. आदित्य, अब ये जैसे हम खत्म कर रहे हैं, when we were finishing our MMP, so then came the full length test. I जी think जी. आपके बैच में we had around 4 to 5 essay tests also, and यस full सर. length test later on we had 2 rounds of full length test. जी So सर. how many full length tests are needed from your understanding? And MMP तो अपनी तरफ से sufficient रखता ही है, but for your revision, what was your strategy towards the last 15 days before the exam when it come to revision and full length test? सर मेरा तो पर्सनल मानना था कि फुल लेंथ टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, तो डेफिनेटली जो आप लोग 7 8 8 करवा रहे होंगे वो तो दे दीजिए. दैट दैट वुड मैटर. बट मेरा एक और मानना था कि एक सिमुलेशन होना चाहिए एग्जाम के पहले, चाहे वो 2 वीक पहले हो चाहे 3 वीक पहले. तो इसलिए मैं अभ्यास हर बार ज्वाइन करता था. अब मतलब वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट सिमुलेशन देना जरूरी है. चाहे आप घर पे बैठ के दें, चाहे अभ्यास के थ्रू जा करके अपने सेंटर पे दें. तो वो एक चीज मेरे अनुसार जरूरी है. बाकी फुल टेस्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए, लेकिन अंडर प्रेशर वो 4 पेपर लगातार लिखने के लिए आपको सिमुलेशन जरूरी है. क्योंकि आखिरी पेपर आते आते मेरी तो उंगली उंगली सुन्न होने लगती थी, एथिक्स का पेपर आते आते, तो वो भी एक प्रैक्टिस जरूरी है. Yes, a full simulation is important, आदित्य. और मुझे इसमें आयुषी का बहुत अच्छा सजेशन लगा, आयुषी प्रधान का. शी सेड, सर आपके यहाँ तो बैटिंग कर ही ली थी, एक जरा इंटरनेशनल पिच पे भी बैटिंग करके देखो. हाँ सर, जो वहां हमने पर यहाँ जब पे नंबर किया आते है, हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. और क्या, डबल हम जब यहाँ से तैयारी करके गए एमएमपी में, आप जरा लेकर आओ. सो दैट्स हाँ. आल्सो व्हाई शी टुक दोस 4 अभ्यास. तो शी सेड, अगर आपके पास टाइम है, एमएमपी में जी. सब करवाएंगे करवाएंगे, एक बाहर जाके भी प्ले किया जाए फॉरेन पिच. वहां अलग फील आती है फिर देख करके अपना बिल्कुल होना चाहिए. तो लेवल ऑफ दैट इज मास. डबली. यस यस. सो आई टोटली अग्री विद दैट. बहुत बहुत ही रेलिवेंट आइडिया है. आदित्य, लास्ट 15 दिन में
लास्ट 15 दिन में somebody is asking what are the most non-negotiable aspects to be covered, कि मतलब ये तो करना ही करना है. There will be thoughts and many things becoming, डर भी लगेगा, छोड़ने का भी मन होगा, you know, there are so many things. So क्या कुछ ऐसी चीजें हैं 15 से 20 दिन जो ये तो करनी करनी है? सर पहली बात तो छोड़ने का तो मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है, जब आपने यहाँ तक खींच लिया है तो आखिरी 15 दिन में तो छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। और बाकी जो नॉन नेगोशिएबल चीजें, आई वुड से कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. What I did for electrical as well as for GS, I identified ki what were my shortcomings throughout my journey of 3 months. So that was the most important thing to revise in the last 15 days. कि मैं जो इलेक्ट्रिकल में गलतियां कर चुका हूँ वो दोबारा ना हो, और जो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट सीखा है दूसरों के कॉपीज देख देख के, वो डेफिनेटली मैं इंक्लूड करूँ. अपना वाला तो याद रह जाएगा क्योंकि वो मैं 3 साल से पढ़ता आ रहा हूँ, बिल्कुल. लेकिन जो नया सीखा है मैंने दूसरों की कॉपीज से, वो बार बार रिवाइज करना जरूरी है ताकि वो डेफिनेटली आए. तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और बाकी प्रैक्टिस तो खैर चलती रहे, लेकिन हाँ धीरे धीरे ऐसे एग्जाम आता है तो वैसे वैसे प्रैक्टिस भी स्लो होने लगती है. आखिरी आखिरी वीक में आई डोंट थिंक आई रोट एनी टेस्ट. मतलब फुल लेंथ टेस्ट ये सब आखिरी वीक में नहीं करते थे. आखिरी वीक में थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिख लिए तो लिख लिए, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट तो मैं नहीं करता था आखिरी वीक में. तो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि ओवर बर्डन भी नहीं करना है उस चीज को. So last week, keep yourself free. Whatever you want to revise from what you've done, वो तो बिल्कुल है ही है. You should do that. आदित्य, you were with your family. एक support रहता है. But कई बार हमने देखा, खासकर tragic events happen and pressure happen. So last में एक social support भी होना चाहिए. Last 15 days. MMP is your family. You can reach out to us. Your teachers and mentors do reach out to us. आदित्य, कुछ ऐसा है जो मानसिक रूप से that can help them to ease their nerves and to derive that strength that someone has my back? So I used to live with my family, so they were my biggest support. If people are living in Delhi, then their friends circle could be their biggest support. जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ जाइए, चाय पीजिए, थोड़ा डिस्कस करिए, बातें करेंगे तो अपने आप मन हल्का हो जाएगा. So those are the kind of things one can do. But if you are at home, then there is nothing better than that. Perfect. कई बार इनको कॉल जाता है, एमएमपी से डांट भी पड़ती है. इज इट ओके? थोड़ी डांट ले लेनी चाहिए, नहीं ले लेनी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल, मुझे तो याद है, मेरे को भी Sometimes. ऐसे के लिए बहुत पड़ी थी. तो मैं वही कह रहा हूँ कि sometimes you get that, and since you are coming right from Sardar Patel Academy, so the training is rigorous, and Yes. certain things you are being pushed against your like natural element for your Yes. betterment. So दो वो feedback लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? Yes सर, बिल्कुल लेना चाहिए. So that's there. So stay positive in this thing. Pressure रहेगा, and your evaluators, your family, and your friends are your closest circle, जिसको आपको strength रखना चाहिए. More or less सब questions जो पूछे थे मैंने वो कर दिए हैं. ऐसे का कुछ और नहीं आया तो अगर तन्मय पूछ रहे हैं exactly help you in essay. ऐसे का अगर आप कुछ कहें तो apart from the essays which you had written here. सर एसेज तो ऐसी डाइसी चीज थी कि मतलब पूरी तरह से मैं खुद भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मेरे 132 आए, फिर मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, ट्राई की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे नए एलिमेंट्स इकट्ठा किए, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव की. उसके बाद 15 नंबर घट गए. तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसे में क्या वर्क करता है. बट हाँ डेफिनेटली ये पता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए. जो मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था, मेरे कंटेंट की यूनिकनेस ये थी कि लोग जीएस के चीजें तो इंक्लूड करते ही हैं, मैं अपनी हॉबी की चीजें भी इंक्लूड करता था. जैसे कि उस टाइम में थोड़ा एवोल्यूशनरी साइंस के बारे में पढ़ता था, डायनासोर्स के बारे में पढ़ता था, तो वो चीजें भी मैं इंक्लूड करता था. दैट गेव डिफरेंट फ्लेवर टू माई एसे कंटेंट वाइज. उसके अलावा फिर आपका कनेक्शन, आपके कोटेशंस बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं होने चाहिए, और आपका जो फ्लो है वो किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी हो सकती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. बट कौन सी चीज किस हद तक मैटर करती है, आई एम नॉट वेरी श्योर इस चीज में तो परफेक्ट डेफिनेटली. आदित्य, ये तो नहीं पता है कि क्या मसाला काम कर गया, बट एक चीज जो सभी टॉपर्स में आती है, मेरा बिल्कुल मानना है, ओरिजिनलिटी. तो जी. ओरिजिनलिटी हमेशा काम कर रही है, ऐसे में ध्यान रखिएगा. बिकॉज द एग्जामिनर इज टायर्ड ऑफ गेटिंग दोज मग्ड अप एसेस. आई थिंक ऑल हु वंडर आर नॉट लॉस्ट, ऐसा ही कुछ एक किसी ब्लॉग पे लिखा हुआ था, सबने वही जाके टेप दिया. तो लाइक एवरीबडी स्टार्ट्स गेटिंग दोज मीडियोकर मार्क्स. बट जब आप अच्छे उसकी बात कर रहे हैं तो आपकी ओरिजिनलिटी वर्क्स. आई थिंक दैट इज वन थिंग आदित्य. एक और चीज आदित्य जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स के साथ चैलेंज आया है, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू बैलेंस बिटवीन टू एसेस. कई बार क्या होता है, एक को ओवरडू कर देते हैं, दूसरे को मिस कर जाते हैं.
So that I believe nowadays with 2 essays coming, it's also a mechanical task of balancing the two. एक में ज्यादा इमोशन चलेगा, दूसरे में टाइम भी कम है, इमोशन भी कम है, इट ऑल डज दैट ऑल्सो. सो आपने 2 अटेम्प्ट भी दिए, एक बार आपका 130 प्लस भी आया है. सो हाउ डिड यू मैनेज 2 essays? इफ यू कैन गिव अस अ प्रैक्टिकल टिप ऑन दैट ऑल्सो प्लीज. सर आई यूज टू टेक द एसेज सीक्वेंशियली, कि पहला एसे मैंने उठाया, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, पॉइंट्स लिखे, फिर वो पूरा एसे लिखा, और पूरी कोशिश है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म होना है, क्योंकि मार्क्स दोनों की इक्वल है, तो आप टाइम इधर उधर नहीं कर सकते, मेरा ये मानना था. तो पहला ऐसे इस तरह से लिख करके, आउटलाइन बना करके पूरा लिख के 1.5 घंटे में खत्म. उसके बाद फिर दूसरे के लिए फिर सेम चीज. कई लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ दोनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों ऐसे साथ में लिखते हैं. आई बिलीव दैट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि फिर आपके आइडियाज, आपके एग्जाम्पल सब कुछ मिक्सअप भी होने लगते हैं और लास्ट वाले ऐसे के लिए खत्म भी होने लगते हैं. यस. तो आई थिंक कि सिक्वेंशियली लेकर के चलना बेहतर रहता है ऐसे में. ओके. इसी में एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई. यूपीएससी इज वन, इट इज थ्रोइंग अस अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस. But I have seen of late UPSC has also been challenging us by, making sometimes the paper lengthy. हाँ. और एथिक्स में वो खास खेल कर जाता है वो कभी कभी, कि यू आर रियली स्टक कि यार अब केस स्टडी भी है और ये भी है. तो अगर आप इसमें टाइम मैनेजमेंट में, क्या आपके पास, डिड यू फेस एवर दिस प्रेशर हैपेंड? आई रिमेम्बर अनु बेनीवाल आपके बैच में शायद आई थी वो डिस्कशन देने, सीनियर, आपसे सीनियर बैच में आईपीएस हैं. यस सर. तो शी सेड कि हमारे टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू था. सो इन दैट पर्टिकुलर ईयर, सो एथिक्स में या किसी पेपर में अगर ऐसा हुआ कि time is running out, so in ethics do we make a choice between section A and B and other papers? Did you face anything or were you prepared for it? If you can throw some light on that. सर जैसे आई रिमेम्बर 2022 का एथिक्स बहुत लंबा था, क्योंकि इवन द Yes. सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे वो 5-5 6-6 लाइन के थे. बिल्कुल. तो डेफिनेटली इन दैट यू डोंट हैव मच ऑप्शन. मेरे अनुसार टाइम तो तब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस चीज को 15 मिनट है उसको 15 मिनट ही देना है. अब आप कैसे स्पीड में पढ़ सकते हैं या कैसे अपनी, क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपको जगह भी भरनी है. ये भी मैंने सीखा अपने सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के बीच. 3 पन्ने हैं तो आप 2.5 पन्ने लिख करके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. तो आपको वो जगह भी मैनेज करनी है. जब जब आपके पास टाइम कम हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ने का टाइम बढ़ गया, तो आपको जगह मैनेज करने के लिए अब जैसे सिर्फ आप वन डॉट लग करके और पॉइंट नहीं लिख सकते. अब आपको कुछ इनोवेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए हाफ सन बना दिया और उससे एरो निकाल करके पॉइंटर्स लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट्स उतने ही रहेंगे लेकिन आपको जगह ज्यादा दिखेगी. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, स्पेशली जब जो लास्ट लास्ट के क्वेश्चन हैं. और बाकी तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस एंड हैविंग थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि जब माइंड में रहेगा तो वो फ्लो भी आसानी से करता है पेपर पे. I दिस वाज द totally ओनली थिंग. agree. I totally agree. और ये जो questions हैं, I'm asking Aditya because I wanted, Aditya to answer them. ऐसा नहीं है, my years of experience, I don't have answers. But I think आदित्य देंगे तो आपको पता है कि वहां पर ये challenges हुए. So आदित्य, एक हमने हमारा मोटो है about answer writing, that you don't write answers in words, you write answers in minutes. आपको यस. 7 मिनट मिले हैं, उसमें आपको वो पेज भी भरना है और विचार भी देने. आई थिंक इफ यस. यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट, दैट आई हैव दिस मच टाइम, वो आप देखेंगे एमएमपी में, इसीलिए आपके टाइम जो है कभी 70 मिनट्स का हो रहा है, कभी 85 मिनट्स का हो रहा है. वी रियली डिवाइडेड दैट योर आंसर हैज टू बी रिटन इन मिनट्स, नॉट इन वर्ड्स. उतने मिनट दोगे तो आपका ऐसे भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, बाकी भी हो जाएगा. एंड एज आदित्य सेड कि sometimes you'll have to expand it also so that it looks big, but that should not be overdone. My strong advice, I remember Aditya, there was this Abhishek करके एक IAS है हमारे छत्तीसगढ़ में. तो somebody asked him कि sir, how did you manage, optional में कभी कभी आ जाता 4 pages का. तो इसे हाँ. टेस्ट सीरीज में तो मैं हमेशा छोटी हैंड राइटिंग लिखता हूँ, एग्जाम में मैं बड़ी लिखता हूँ यार. Well, the situational awareness is there, that you can keep your headings little wider spaced and all those things. So that has to be there. So I hope everyone realizes space भी use करना है and dimensions भी देनी है. That is how it will happen. Ethics का कोई कह रहा है, sir, how was approach in ethics, first case study और theory question? तो एक simple question है, case study से शुरू करते थे आप या theory questions in ethics? केस स्टडी से, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआत के 5 मिनट में 2-3 केस स्टडी पढ़ने में लगाता था, तो फिर नेचुरली मेरे को केस स्टडी से शुरू करना ही फायदेमंद है, वरना तो मैं भूल जाऊंगा 90 मिनट के बाद.
And I तो also believe that case study does हमारा mind थोड़ा सा rev कर देता है वो. You know, the pump is primed a bit. उन्हीं case study से you know फिर वो vocabulary भी आती है और हम अपने theory answers में बहुत कुछ वहां से ले जा सकते हैं. So I guess that's a good idea. So that's it. मेरे ख्याल से हमने काफी देर बात कर ली है और इससे ज्यादा if we start doing तो प्रवचन हो जाएगा आदित्य. That is not the intention and motto of MMP. MMP is लोहा गरम है मार दो हथौड़ा. So it was a pleasure, Aditya. Thanks a lot. As you know, like this is what we believe, that MMP is not about you know some branding, some marketing, or some you know like some revenue model. It is something you know a community which collaborates. So as all other MMP members came to help our MMP batchmates. So thanks a lot, Aditya. आप यहाँ पर आए. And sir, the pleasure is mine, sir. और एमएमपी की जहां तक बात है, मास्टर स्ट्रोक चलाना हर साल आसान काम नहीं होता है. तो आप लोग हमें इंस्पायर्ड रखते हैं. दैट इज व्हाई वी हैड प्लान्ड इट दिस ईयर आल्सो. एंड आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट आई रियली होप एंड विश दैट वेरियस कमर्शियल कोचिंग्स दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि जी सर. आप इतना कुछ पावर एंड एग्जिस्टेंस आप स्टूडेंट से लेते हैं, तो स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत दिल से, बहुत प्रेम के साथ, you know, with a lot of sense of contribution, we should do programs like MMP. Deserving students are always waiting for this, and for that they need not come to Delhi. जहाँ है हमें वो करना चाहिए. So आदित्य, सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं. Thanks a lot for coming chat पर. My pleasure, sir. My pleasure. And Being a part of this family again. we wish you a great career.